Hello student, welcome to Sentinel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we had solved some numerical based on superposition theorem. In this video we will solve numerical based on Young double slit experiment. So let's start. In the setup of Young double slit experiment, if slits are separated by a distance of 0.2 mm and the screen is placed at 1.5 meter from slits. Find first one, the position of second bright fringe. Second one, position of second dark fringe. Third one, fringe width. Fourth one, angular fringe width. Fifth one, what happened if the screen be moved away from slit? If a monochromatic light of wavelength 500 nanometer incident on the slit. So बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हम उसे नोट करते हैं. फ्रॉम क्वेश्चन, in Young double slit experiment if slit are separated by a distance of 0.2 mm, यानी दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन S1 और S2 के बीच का सेपरेशन, जिसे हम क्या मानते थे, स्मॉल d. तो फ्रॉम क्वेश्चन स्मॉल d इक्वल टू 0.2 mm, इट मीन्स 0.2 into 10 to the power minus 3 meter. And the screen is placed at 1.5 meter from slit. और स्क्रीन कहाँ प्लेस्ड है, तो 1.5 मीटर फ्रॉम स्लिट से. इट मीन्स कैपिटल D इक्वल टू 1.5 मीटर. सो कैपिटल D इक्वल टू 1.5 मीटर, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस. वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, यानी सेकेंड डार्क फ्रिंज का पोजीशन. थर्ड पॉइंट में फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है. फोर्थ पॉइंट में एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है. और फिफ्थ पॉइंट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द स्क्रीन बी मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, यानी अगर हम इस स्क्रीन को स्लिट से मूव करें, दूर ले जाए, तो क्या होगा. ठीक है, लाइट का वेवलेंथ कितना गिवन है, 500 नैनोमीटर. सो वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट मींस लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर. इट मींस 500 into 10 to the power minus 9 meter. It means 5 into 10 power minus 7 meter. So let's solve first part of the question.
पहले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन. वी नो दैट पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज. nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, xn इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d. So we calculate position of second bright fringe by put the value of n equal to 2. So for second bright fringe put n equal to 2. So x2 equal to 2 lambda d upon d. x2 equal to 2, lambda is given in the question, 5 into 10 to the power minus 7. D is the distance between slit and screen, which is equal to 1.5 upon small d, which is equal to 0.2 into 10 to the power minus 3. By solving we get x2 equal to 15 5 the 75 into 10 to the power minus 7 into 10 to minus 3 becomes 10 to the power plus 3. So x2 equal to 75 into 10 to the power minus 4 meter. It means position of second bright fringe is equal to 7.5 into 10 to the power 3 meter, and 10 to the power minus 3 meter equivalent to 1 mm. So it is equal to 7.5 mm. तो बच्चों सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ फॉर्म होगा, तो स्क्रीन के सेंटर से 7.5 mm पे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा. So please pause the video and note in your notebook. Let's solve the second part of the question. In second part we have to find the position of second bright fringe. Position of second dark fringe. It means x2 dash. We know that position of nth dark fringe, x n dash equal to 2n minus 1 lambda d by 2d. So put n equal to 2. We get position of second dark fringe equal to 2 into 2 minus 1 lambda d by 2d. It means x2 dash equal to 3 lambda d by 2d. Here 3 lambda equal to 5 into 10 power minus 7, and d is given in the question 1.5 to small d is equal to 0.2 into 10 power minus 3. By solving we get 5 3s are 15, 15 into 15, 225 into 10 to the power minus 7 upon 2 2s are 4, 4 into 10 to the power minus 3. So x2 dash equal to 2 to 5 by 4 into 10 to the power minus 4. By solving we get x2 dash equal to 5 4s are 20, 2 5 25, 5 6 4s are 24, 4 2s are 8, 4 5s are 20 into 10 to the power minus 4. By solving we get position of second dark fringe is equal to 5.6
625 into 10 to the power minus 3 meter. It means position of second dark fringe x2 dash equal to 5.625 mm. Now in third part of the question, we will find the value of fringe width. So we know that fringe width beta equal to lambda d upon d. So we get beta equal to 5 into 10 to the power minus 7 1.5 upon d, which is equal to 0.2 into 10 power minus 3. By solving we get beta equal to 5 into 1.5 7.5 into 10 to the power minus 7 upon into 10 upon 2 into 10 to the power minus 3. So beta equal to 3 2s are 6, 7 2s are 14, 5 2s are 10 into 10 to the power minus 3. It means beta equal to 3.75 mm. It means width of one fringe is equal to 3.75 mm. Now in fourth part of the question, we will calculate the value of angular fringe width. Angular fringe width, that is beta theta. We know that beta theta equal to beta upon d. Here beta is 3.75 into 10 to the power minus 3 upon d, which is equal to 1.5. By solving we get beta theta equal to 15 2s are 30, 15 5s are 75 into 10 to the power minus 4. So beta theta equal to 2.5 into 10 to the power minus 3 radian, which is the value of angular fringe width. Now student, in fifth part of the question, which is the theoretical portion, which state that अगर हम स्क्रीन को स्लिट से दूर ले जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. स्टूडेंट, स्क्रीन को स्लिट से दूर ले जाने में डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो डी की वैल्यू इंक्रीज होने से फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगा. इट मीन्स व्हेन वी मूव द स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्लिट, fringe width increase but angular fringe width remain same, because angular fringe width is independent with the D. And as we move the screen away from the slit, position of dark fringe and position of bright fringe both are increased. So please pause the video and note in your notebook. Let's solve next numerical. Laser of wavelength 640 nanometer incident on the pair of slits produced in interference pattern. In which the bright fringe are separated by 7.2 mm.
calculate the wavelength of another source of light which produce interference pattern in which fringes are separated by 8.1 mm using same arrangement. So स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में 640 नैनोमीटर का लाइट इंसिडेंट किया गया किसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे. कंसीडर द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d एंड स्लिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. तो फर्स्ट पार्ट में वेवलेंथ यूज किया गया λ1 इक्वल टू 640 नैनोमीटर का. इट मींस 640 इंटू 10⁻⁹ मीटर का वेवलेंथ इंसिडेंट किया गया. तो उस कंडीशन में जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? 7.2 mm. एक्चुअली दिस वैल्यू इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, क्योंकि दो ब्राइट के बीच में क्या आता है बच्चों? एक डार्क आता है. और किसी भी फ्रिंज का जो विड्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं. That's why in first condition when wavelength 640 nanometer is used, in this condition fringe width is given as 7.2 mm. It means 7.2 into 10⁻³ meter. Calculate the wavelength of another source of light which produce the interference pattern which fringe are separated by 8.1 mm. It means वो wavelength क्या होगा जिससे कि ये फ्रिंजेस कितने mm से सेपरेट हो जाए? 8.1 mm से सेपरेट हो जाए. इट मींस इन फर्स्ट कंडीशन λ1 गिवन, β1 गिवन, एंड इन सेकंड कंडीशन β2 गिवन, बट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ λ2. सो वी नो दैट बीटा इक्वल टू फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? λd/d. अगर हम फर्स्ट कंडीशन में लिखे तो β1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? λ1 d/d. एंड अगर हम सेकेंड कंडीशन में लिखे β2 इक्वल टू λ2 d/d. बिकॉज स्टूडेंट सेटअप वही है, इस वजह से ना तो d में कोई चेंज आएगा ना कैपिटल D में. दैट्स व्हाई β1 इक्वल टू λ1 d/d एंड β2 इक्वल टू λ2 d/d. सो β1 upon β2 equal to λ1 upon λ2. Now β1 is equal to 7.2 into 10⁻³ while β2 is 8.1 into 10⁻³ equal to λ1 which is equal to 640 into 10⁻⁹ upon λ2. By solving we get 9 9 is 81, 9 7 जा 9 8 जा 72, 8 6 जा 8 8 जा 64. So here λ2 equal to 9 8 जा 72, 720 into 10⁻⁹ meter. It means λ2 equal to 720 nanometer. तो बच्चों अगर उसी सेटअप में हम 640 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज करें तो फ्रिंज के बीच में सेपरेशन कितना होगा? 7.2 mm का. और अगर इसी सेटअप में हम 720 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज करें तो फ्रिंज के बीच में स्पेस कितना होगा? 8.1 mm का. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक. सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बीम ऑफ लाइट consists
two wavelength 650 nanometer and 520 nanometer incident on the setup of young double slit experiment to obtain the interference pattern. What is the least distance from central maxima at which bright fringe due to both wavelength coincide? If the separation between slit is 2 mm and the screen is placed at a distance of 1.2 meter from slit. So स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इसे बहुत बार पूछा भी है. A beam of light consists two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer. यानी दो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को इंसिडेंट किया गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए. फर्स्ट वेवलेंथ कितना है बच्चों? 650 नैनोमीटर. इट मींस 650 into 10 to the power minus 9 मीटर. while second wavelength कितना है? 520 नैनोमीटर. It means lambda 2 equal to 520 into 10 to the power minus 9 meter. What is the least distance from center maxima at which bright fringe due to both coincide? स्क्रीन के सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमम वो डिस्टेंस बताओ जहां पे दोनों के कारण बनने वाले ब्राइट फ्रिंज कंसाइड करते हो. तो स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन में अलग अलग वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ के अलग अलग होने से क्या होता है? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी. अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण इनसे जो फ्रिंज फॉर्म होगा उनका विड्थ भी अलग होगा. लार्जर वेवलेंथ है लार्जर फ्रिंज विड्थ, while smaller wavelength है smaller fringe width. तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न पे कि लार्जर वेवलेंथ का मान लो फोर्थ और शॉर्टर वेवलेंथ का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कंसाइड कर जाए. क्यों? क्योंकि इसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा और इस वाले का फ्रिंज विड्थ कम होगा. तो आपको वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहां पे लैम्डा 1 के ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 के ब्राइट फ्रिंज दोनों ही क्या करे? कंसाइड करे. यानी इस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू लैम्डा 1 इक्वल टू ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू लैम्डा 2, दोनों के कारण ब्राइट फ्रिंज क्या है? सेम है या कंसाइड कर रहा हो. तो आपको वो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा 1 का nth ब्राइट फ्रिंज कंसाइड कर रहा होगा लैम्डा 2 के mth ब्राइट फ्रिंज के साथ. सेम तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रिंज विड्थ अलग अलग है. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका फोर्थ और इसका फोर्थ कंसाइड करे. हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये लैम्डा 1 वाले वेवलेंथ का थर्ड ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 2 वेवलेंथ का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कंसाइड कर जाए. या ऐसा भी हो सकता है कि लैम्डा 1 वेवलेंथ का फिफ्थ और लैम्डा 2 वेवलेंथ का सिक्स कंसाइड कर रहा हो, क्योंकि इसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा है. इसलिए ये इसका ब्राइट फ्रिंज फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जब तक आ सकता है हो सकता है तब तक इसका पांचवा ब्राइट फ्रिंज आ जाए क्योंकि इसका फ्रिंज विड्थ कम है. सो कंसीडर
nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 कंसाइड विथ mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन कैलकुलेट करेंगे लैम्डा 1 वेवलेंथ के nth ब्राइट फ्रिंज का। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू xn इक्वल टू n लैम्डा d बाय d। सो लैम्डा 1 वेवलेंथ का nth ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, xn इक्वल टू n लैम्डा 1 d बाय d विच इज इक्वल टू x। वो किसके बराबर है, x के, क्योंकि हमने माना है कि लैम्डा 1 का nth ब्राइट फ्रिंज कहाँ फॉर्म हो रहा है, स्क्रीन के सेंटर से x डिस्टेंस पे। सिमिलरली लैम्डा 2 का mth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या हो जाएगा, xm इक्वल टू, इट मींस पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1, इट मींस m लैम्डा 2 d बाय d। और ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, ये भी x के बराबर। जब दोनों वैल्यू x के बराबर है तो x की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, m लैम्डा 2 d बाय d इक्वल टू n लैम्डा 1 d बाय d। सो यार d to d कैंसिल, कैपिटल D to कैपिटल D कैंसिल। वी हैव m लैम्डा 2 इक्वल टू n लैम्डा 1, इट मींस m बाय n इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू 650 नैनोमीटर, 650 into 10 to the power minus 9, and lambda 2 which is equal to 520 nanometer, 520 into 10 to the power minus 9. By solving we get 4 5, it means m by n equal to 5 ratio 4. So by this equation we can say that m equal to 5, n equal to 4, और m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। इट मीन्स बच्चों कि लैम्डा 2 का 5th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 1 का 4th ब्राइट फ्रिंज कंसाइड करेगा, लैम्डा 2 का 10th ब्राइट फ्रिंज और लैम्डा 1 का 8th ब्राइट फ्रिंज आपस में कंसाइड करेगा। मगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, लैम्डा 2 का 5th ब्राइट किसके साथ कंसाइड करें, लैम्डा 1 के 4th ब्राइट के साथ। तो फाइनली लीस्ट डिस्टेंस वेयर ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स कंसाइड। इसके लिए n की वैल्यू क्या रखोगे स्टूडेंट, n इक्वल टू 4 या m इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू n लैम्डा 1 d बाय d और m लैम्डा 2 d बाय d। Put n equal to 4, so x equal to n lambda 1 d by d, n equal to 4, lambda 1 equal to 6, 50 into 10 to the power minus 9 d which is equal to 1.2 given in the question, and small d which is equal to 2 mm equal to minus 3. By solving we get x equal to 1.56 mm. It means स्क्रीन के सेंटर से 1.56 mm पे लैम्डा 1 वेवलेंथ का 4th और लैम्डा 2 वेवलेंथ का 5th ब्राइट फ्रिंज आपस में कंसाइड करेगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।